Hello, good morning FIBCom students. So yesterday we were discussing about the social problems of women in India. Half points were over, half hours remain. So today I am going to finish it. Okay, the next point is divorced women. Divorced women का मतलब क्या है? The divorced women who have the children. Hello, लेक्चर आम्ही करते थोड्या वेळाने फोन करा. The divorced women who have the children face economic difficulties. Further, even they are economically independent, their social status low. तो उसका मतलब क्या है कि those who are divorced women, they have to depend on the others for economically. Okay, if they are earning, if they are earning well, then they don't have to depend on the others. But though their social status is low, because जो समाज का उसका जरिया है देखने का वो कैसा है, थोड़ा सा अलग है कि हाँ ये तो डिवोर्स वुमन है, ये तो डिवोर्स वुमन है, इस तरह से उनको देखा जाता है. ओके, आगे का पॉइंट है आगे का पॉइंट है प्रॉपर्टी ओनरशिप इन द पेट्रियार्की. In the patriarchy, the females are denied their rightful share of property. If the woman demands her share of property, she is considered to be greedy and selfish. Not only this, in some societies, the property may belong to the female, but its management is in the hand of the male. तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो हमारा पुरुष प्रधान जो समाज है उसमें that females right are denied. Okay, they don't have given the more rights. If they have given the rights, but its management is not in their hand. For example, that before marriage, the woman now, before marriage, the girl belonged to the girl belonged to her father, and after marriage, she belonged to her husband. But though sometimes it happens that their share of property is not given to them. अगर उन्होंने डिमांड भी कर दिया तो उनको ग्रीडी या सेल्फिश बताया जाता है. ओके, कुछ कुछ समाज में या कुछ कुछ जाति में या कुछ कुछ कास्ट में अगर उनके हाथ में सब कुछ होते हुए भी उनको शेयर का प्रॉपर्टी शेयर किया गया है, लेकिन उसका मैनेजमेंट उनके हाथ में नहीं होता है. Hello, good afternoon FI students. Good afternoon FI students. Good morning, ma'am. Good morning. Okay, I already explained 2 points because I have already started at 10:15. But though some network issue, you will not get or you would not get the message in the proper time. I already explained. Okay, that problems of women in the society or social. That last 2 points were over, na? Last 2 points were remain divorce women and property ownership. So I already explained. Okay, let's start. The problems of women at the workplace. Low wages. The majority of Indian women are employed in agriculture, small scale industry and domestic labor. They get the poor wages and have no job security. So whenever we are talking about the wages or the salaries, that most of that women are employed in the agriculture. Okay, in the agriculture sector we can see the women labor and small scale industry and domestic labor.
they get the very poor wages and they don't have the job security. For similar type of the work, their wages are about 25% less than or less than those of men. Means whenever we compare men and women's salary, their salary means women's salary is 25%. कि जैसे हम महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं का जो काम कर हमें ज़्यादातर भारत में जो महिलाएं काम करते दिखाई देती है तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हुए दिखाई देती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम करते हुए दिखाई देती है और डोमेस्टिक लेबर में हमको काम करते हुए दिखाई देते हैं। वो बहुत मेहनत करती है लेकिन उनको उतना सैलरी या वेजेस नहीं मिलता है, उनका जॉब का भी सिक्योरिटी नहीं होता है। अगर जब कंपैरिजन की जाए महिला और पुरुष की सैलरी की तो महिलाओं की जो सैलरी होती है वो 25% होती है। डू अंडरस्टैंड? डू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Next point is poor opportunities for advancement. Today, women work in every field such as science, engineering, architecture, medicine, police, law, politics, even aerospace industry. But the most women are in the typical feminine occupations such as receptionist, secretary, typist, telephone operator, and teacher. Though women make up around 40% of the workforce, women employment is concentrated in low-paying occupation. Okay, that when the opportunities are provided in the advance, at that time the opportunities are provided to the women in advance, that we can see the women in every field of society. Now we can see them in science, engineering, architecture, in every field. Though you can't miss, you haven't seen that every single world without women. आपने कभी देखा है कि अभी ऐसा कोई भी फील्ड बाकी नहीं रहती जहाँ महिलाएं काम न करती हो? कि सभी फील्ड में महिलाएं हमको क्या करती दिखाई देती है? काम करते हुए दिखाई देती है। तो अभी जैसे हम बोलते हैं कि टिपिकल जो ऑक्यूपेशन है कि रिसेप्शनिस्ट है, सेक्रेटरी है, टाइपिस्ट है और टेलीफोन ऑपरेटर है, टीचर है, कि दो वी आर अर्निंग बट वी आर अर्निंग लेस देन द मेल, कि हमको जो हमारा ऑक्यूपेशन होता है, जो हमारा वेजेस होता है वो कैसा होता है? कम होता है। ड्यू टू द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, वेरी फ्यू ऑफ देम आर इन द सीनियर मैनेजमेंट पोजिशन। Because of the discrimination that in the organization or in the firm the women are discriminated very much, and they are seen very less in the higher पोजीशन। की कभी कभी जो हमें भेदभाव किया जाता है तो भेदभाव की वजह से क्या होता है कि अगर वो किसी हायर पोस्ट में भी वो क्वालिफाइड है लेकिन वहाँ पे उनको पोस्ट नहीं दिया जाता है। अगर महिला क्वालिफाइड है, अगर वीमेन क्वालिफाइड है तो भी उनको उतना पोस्ट नहीं दिया जाता हायर पोजीशन के लिए, हायर मैनेजमेंट पोजीशन के लिए। समझ में आ रहा है? डू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट पॉइंट Yes, ma'am. आगे का देखते हैं। Yes, ma'am. Analysis by Catalyst, the prominent business magazine, shows that only 2.5% of top that 1,000 companies have women as the chief executive officer. Okay, so according to the Catalyst or according to that analysis, that whenever we are talking about the higher position management or senior position management of women, they are very less, means 2.5%. Recently, some MNC मतलब multinational companies, have started employing women to the top position. Nowadays, in the recent time, that MNC are also giving the higher position or senior post to the women. They have realized that the women are better at the communication, and also having more women in the top position enables company to consider diverse view for better running of the organization. So after onwards, when they are going to select women for the higher position, they realize that women are very good at the communication. Okay, so because of her communication,
डाइवर्स द सिचुएशन और शी डाइवर्स द व्यूज फॉर बेटर रनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर वही वही पॉइंट है, लेकिन वहाँ पे क्या बताया गया है कि जो कैटलिस्ट के अनुसार अनुसार जब डाटा निकाला जाता है कि कितना परसेंट महिलाएं कितने काम करती है हायर पोजीशन में, तो 2.5%। पर लेकिन अभी जो हम बोलते हैं मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं वो अभी महिलाओं को हायर पोजीशन के लिए हायर पोजीशन के लिए चुनते हैं, क्योंकि उनको पता चल चुका है, वो जान चुके हैं कि जो महिलाएं होती है वो कम्युनिकेशन में बहुत अच्छी होती है, कि जिसकी वजह से उनका बोलने का जो ढंग होता है तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो फायदा कारक हो सकता है और ऑर्गेनाइजेशन को एक अलग दिशा में वो ले जा सकती है। समझ में आया? समझ में आया? Yes, ma'am. Okay. Yes. Next point is sexual harassment in the workplace. The sexual harassment in the workplace is the reality. This is the position in India as well as in the advanced countries. That in United States, Mitsubishi Motor Manufacturing of America and American subsidiaries of Astra AB, the giant Swedish drug producer, have faced the harassment charges. यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, तो सेक्शुअल हरेसमेंट मीन्स वेन एवर द वीमेन गो इन द पब्लिक प्लेसेस दैट दे बिकेम अ पब्लिक प्रॉपर्टी। हाँ, कि फॉर एग्जांपल हमें ये बहुत सारे एग्जांपल हमें दिखाई देते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मुंबई की ट्रेन में कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जहाँ पे हमको दिखाई देती हैं, तो महिलाओं के साथ किस तरह से बर्ताव किया जाता है, क्या किस तरह से उनके साथ सलूक किया जाता है। अगर पब्लिक प्रॉपर्टी है, उनको कहीं भी छू लो, कहीं भी हाथ लगा लो, कोई किसी को बोलने वाला नहीं, और शर्म के मारे तो कुछ महिलाएं बोल भी नहीं पाते, जिसकी वजह से जो हम बोलते हैं कल्प्रिट या क्रिमिनल, या हम बोलते हैं कि जो दोषी है उनकी आदतें कैसी जाती है, बढ़ती जाती है ना, उनकी आदतें कैसे हो जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। बढ़ती जाती है। तो इसकी वजह से उनके जो मान सम्मान, महिलाओं का जो मान सम्मान होता है उस पे धक्का लगने के वो धक्का लगाते हैं, उस पर कलंक लगाते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दिया है कि जो अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग मित्सुबिशी मोटर मैन्युफैक्चरिंग का जो अमेरिका का जो मैन्युफैक्चरिंग है और अमेरिका का जो सब्सिडी ऑफ आस्ट्रा एबीसी है, तो उसमें जो सबसे बड़ा जो ड्रग प्रोड्यूसर था स्वेडिश, तो उसने भी वो भी ही इज ऑल्सो कॉट इन द केस ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट। उसने भी कुछ महिलाओं को सेक्सुअल हैरेसमेंट किया होगा, उसकी वजह से उसको भी पनिशमेंट मिला था। ही वॉज द मोस्ट जायंट प्रोड्यूसर, ओके, जायंट ड्रग प्रोड्यूसर। कि अगर उसके पास पैसा है, पावर है, लग्जरी है, फिर भी उसको जितना उसने गलत काम किया है उसके लिए वो पनिशेबल है। तो ये यहाँ पे बताता है हाई प्रोफाइल केस ऑफ इंडियन कंपनी that faced such charges was that Infosys टेक्नोलॉजीज। तो इन्फोसिस का नाम आपने शायद सुना होगा। इन्फोसिस टेक्नोलॉजी ये जो बड़ी कंपनी है हमारे भारत में, जहाँ पे बहुत सारी महिलाएं भी काम करती हैं और पुरुष भी काम करते हैं, तो लेकिन वहाँ पे भी कुछ ऐसे केसेस वहाँ पे नोटिस हुआ था। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? डू अंडरस्टैंड? यस और Yes, नो? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ओके, ma'am. ये अभी ये रिसेंट टाइम के एग्जाम्पल है, तो आपको जल्दी से समझ में आइए, रिसेंट टाइम के एग्जाम्पल है। ओके, आगे देखते हैं। फर्दर इन इंडिया, इन द स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट, द वीमेन आर हेल्पलेस इन प्रोटेक्टिंग themselves. They do not have the strong women's union or lobby, so they rarely seek the justice. Even in the high position may not be spared. That a study of SNDT, that Women's University, brought out because of sexual harassment, some women in the top managerial position have quit their jobs. So, though women working in the higher position or though women working in the lower position means they are working in the small scale industry, but they are not safe at their workplace. They are not safe at the workplace. Sometimes which I earlier mentioned it, that to protect themselves or to protect their image, to hide their image, they
keep silent. They keep silence and they can't say anything to that particular person who is doing wrong with them. Okay, if they don't have the courage, if the women don't have the courage, if the women don't have the courage, then the people are taking disadvantage. This kind of the people are taking disadvantage of their, the people are taking disadvantage of their what we can say that of their silence. कि यहाँ पे हमको दिखाई देता है कि अगर महिलाएं कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम करती हैं या हायर पोजीशन में भी काम करती है, लेकिन वो वहाँ पे सेफ नहीं है. क्यों सेफ नहीं? कि अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आपको कहने की बात, कहने का और चाटा लगाने का आपका, जो हम बोलते हैं कि इतना हिम्मत लड़कियों में होना चाहिए, ना कि कोई भी आए और कुछ भी गलत करके हमारे साथ निकल जाए. तो यहाँ पे एक SNDT का एक यहाँ पे स्टडी दिया गया है, उसमें ऐसा बताया है कि जो महिला है हायर पोजीशन में, मैनेजर पोजीशन में वो काम करती थी या कुछ काम करती थी, लेकिन उन्होंने जॉब क्यों छोड़ दिया? क्योंकि सेक्सुअल हैरेसमेंट की वजह से. अगर फॉर एग्जांपल कुछ कंपनी में ऐसा भी दिखाई देता है कि महिलाएं काम कर रही है, उनका प्रमोशन नहीं हो रहा है, कि उसने बॉस ने उसके सामने कुछ ऐसी शर्त रखी जिसकी वजह से महिलाएं तैयार नहीं होती है, तो उसको फिर टॉर्चर किया जाता है, मेंटली टॉर्चर किया जाता है, या वो अपना खुद जॉब छोड़ दे, ऐसा कुछ उनके साथ एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है. हाँ, अगर आप बॉस के साथ हाँ में हाँ मिला लो, सब कुछ उसके हिसाब से चलो, तो आपका प्रमोशन जल्दी से हो जाएगा. तो इस प्रकार का एटमॉस्फेयर हमें ऑफिस में या ऑर्गेनाइजेशन में या इंडस्ट्री में हमको दिखाई देता है. डू अंडरस्टैंड? डू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. अगर कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं. ओके, आगे देखते हैं क्या लिखा है. क्या लिखा है यहाँ पे? डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो. डिक्लाइनिंग मतलब क्या? डिक्लाइनिंग मतलब क्या? डिक्लाइनिंग मतलब क्या? कम होना. कम होना. यस, डिक्लाइनिंग मीन्स उसका कम होना. ओके. In the most countries, patriarchy prevails, and in the patriarchal system, there is a gender discrimination against women. Not in only country, not in only our country, but in the other countries, we can see the patriarchy system. That males are more important, and due to this, male flourish and female perish. Okay, so because of that patriarchic system, that males are flourished, that males are given more important, and female perish means females are given less important. The first point is, which are the reasons we will see. That declining sex ratio. Census data from 1901 to 2011 shows that the female population in 1901 there were 3.2 billion fewer females than males. By the 2001, this deficit increased to 35 million. Means the whenever the data is given to us from 1901 to 2011. Okay, so here the data is gathered, that is there were only 3.2 million females were there, but by the 2001 that it increased up to 35 million. India's over sex ratio reached the last India's overall sex ratio reached the lowest level of 1927 in 1991. Means whenever the data is given in 1991, India's females uh, females level or sex ratio reached at the 1927 per thousand males. That is in 1991 there were 927 females against thousands males, जैसे मैंने अभी बताया. In 2001 sex ratio was 933 in 2011 and it was 943. तो आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? No, ma'am. नहीं आया समझ Yes, में. ma'am. क्या बताया कि यहाँ पे No, ma'am. डाटा निकाला गया है.
1901 से लेके 2011 तक, तो कितने साल का डाटा हुआ? 1901 से लेके 2011 तक कितने साल का डाटा हुआ? 20 साल का हुआ ना? 20 साल का Yes, हुआ ma'am. कि हाँ यस मैम। सो 1901 से लेके 2001 और 2001 से लेके 2011 20 साल का डाटा हुआ। तो उसमें लड़कियों का जो हम बोलते हैं लेवल कितना था, लड़के कितने हम बोलते हैं प्रोपोर्शन में पैदा हुए, उनको कितना वर्क दिया गया, वो कितने आगे बढ़े, वो कितना पढ़ी, वो डाटा निकाला जाता है। तो उसके हिसाब से कि जब 1901 की हम बात करते हैं तो उसमें 3.2 मिलियन था। वो पॉइंट कैसा था? कम था। लड़कियों का जो हम बोलते हैं ना रेशियो था ना, वो कम था। लेकिन जब 2001 आया तो वो कितना बढ़ा? कितना बढ़ा? 35 मिलियन बढ़ा। मीन्स क्या हुआ? इंक्रीज हुआ ना? इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? Yes, ma'am. ओके। यस मैम। और Yes, जो भारत का जो हम बोलते इंडिया लोएस्ट डाटा, लोएस्ट सेक्स रेशियो 1991 में, मीन्स जब महिलाओं की संख्या कम थी तो कितना था? 927 था। ओके। तो 1000 मेन में जितना ज़्यादा होगा, कि फॉर एग्जाम्पल 1000 मेन है तो फॉर एग्जाम्पल 984 है, तो कैसा होता है? बैलेंस होता है। समझ में आ रहा है? बैलेंस होता है कि नहीं होता हाँ है? मैम, यस मैम। हाँ मैम, बैलेंस होता है कि फॉर एग्जांपल सोसाइटी चलाने के लिए, समाज चलाने के लिए दोनों ही जरूरी है। एम आर आई, गर्ल एंड बॉय दोनों ही Yes, ma'am. जरूरी है। ओके। लेकिन जब जब संख्या कम होती जाएगी, महिलाओं की संख्या कम होती जाएगी, तो फिर मेल बढ़ते जाएंगे। डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो, दोनों बैलेंस होना चाहिए। वहाँ पे एक हम बोलते हैं एक तराजू ज्यादा है ऊपर है, एक तराजू कैसा है? नीचे है। तो वहाँ पे महिलाओं की संख्या कम थी। लेकिन उसके बाद कि जब हम 2001 की बात करते हैं, दो सेक्स रेशियो कितना था? महिलाएं कितनी थी? 933। और 2011 में कितना था? 943। तो अभी वो कैसा होता है? थोड़ा बहुत क्या हो जाता है? बैलेंस हो जाता है। समझ में आ रहा है? Yes, समझ ma'am. में आ रहा है? कि जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि जितना हम बोलते हैं इन्फेंट मोरालिटी रेट, मीन्स लड़कियों का संख्या किस तरह से कम होता है, कौन सा रीजन है। तो उसमें एक पॉइंट मैंने बताया था कि डाउरी, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं कि लड़कियों, फॉर एग्जांपल आपको एक बेस्ट एग्जांपल मुझे देना हो तो सीक्रेट सुपरस्टार, ये जो मूवी है ना माइनॉरिटीज पे जो बनाई गई है, कि फॉर एग्जांपल ये जो मूवी है, तो लड़कियों को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, लड़कियों को घर में किस तरह से ट्रीट किया जाता है, कि उनको देखने का नजरिया कैसा है, लड़की ही क्यों पैदा करना, सिर्फ लड़के ही चाहिए। और नॉट ओनली माइनॉरिटीज, मैं माइनॉरिटीज पे ये कमेंट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी हम इस प्रकार की मूवी देखते हैं तो हमको समझ में आता है कि किस कास्ट में या हर एक कास्ट में किस तरह महिलाओं का हम बोलते हैं कि जैसे मैंने आपको कल भी बताया था मर्दानी मर्दानी 2, उसमें भी जो हम बोले कि राजस्थान का जो सिनारियो है लड़कियों को लेके, वो कैसा है? ऑलवेज कैसा होता है? कम होता है। वहाँ पे लड़कियों को ज़्यादा पढ़ा ही नहीं जाता है। कि शायद आप जब छोटे होंगे तब एक सीरियल्स पे आती, एक सीरियल आती थी कलर्स पे, बाल विवाह, ऐसा कुछ था ना, बाल विवाह वाला कौन सा सीरियल था? कौन सा सीरियल था? आपको शायद पता होगा, छठी या सातवीं में आप होंगे तब ये बालिका वधू। बालिका वधू, यस वेरी गुड। तो बालिका वधू में ये बताया था कि वहाँ पे लड़कियों की कीमत क्या होती है, हर एक फैमिली में लड़कियों की कीमत क्या होती है, कि जिसकी वजह से लड़कियों को पैदा ही नहीं किया जाता, लड़कियों को मार दिया जाता है। सो दैट इज द थिंग। अगर यहाँ पे माइनॉरिटीज के बच्चे सुन रहे हैं, माइनॉरिटीज बच्चे, तो आप ऐसा मत सोचिए कि मैडम हमारे कमेंट पास करें, नहीं। मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, मैं जो बता रही हूँ कि जब भी आप देखते हैं कई जगह पे, आपको खुद को भी पता है कि आपका पोजीशन क्या है आपकी कास्ट में। तो जब सीक्रेट सुपरस्टार आप जब मूवी देखेंगे उसमें बताया होगा कि एक लड़का, एक लड़की और एक लड़का होता है। तो जब लड़का छोटा है तो लड़की बड़ी होती है, तो वहाँ पे लड़कियों को कुछ कीमत ही नहीं होती है। उसका उसका सोच क्या है, उसको उसकी क्या इच्छा है, उसको क्या अच्छा लगता है, बिल्कुल भी नहीं। और जो औरत बताई गई है, जो हम बोलते हैं उसकी मदर बताई गई है,
उसको भी मार पीटा जाता है, छोटी छोटी बात में उसको इंसल्ट किया जाता है। तो इस तरह का हैरेसमेंट डोमेस्टिक वायलेंस में आता है, तो उसको हम बोलते हैं। और यहाँ पे एक प्रोग्राम भी हुआ था, आपने शायद अटेंड भी किया होगा, डोमेस्टिक वायलेंस। उस टाइम आई थिंक महीना पहले ये प्रोग्राम भी हमारे यहाँ पे अरेंज किया गया था, तो आपने ये शायद प्रोग्राम सुना भी होगा। एम आई राइट? एम आई राइट? Yes, ma'am. ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं। Yes, ma'am. नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ओके, जेंडर वाइज वेरिएशन अमॉन्ग स्टेट। तो अभी जेंडर वाइज वेरिएशन हमें हर स्टेट में कैसे दिखाई देता है? एक जैसा दिखाई देगा या अलग अलग दिखाई देगा? जेंडर वाइज अलग-अलग. अलग अलग दिखाई देगा। देखिए, केरला हैज अलग-अलग. एज मेनी एज 1084 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। तो यहाँ पे केरला में फीमेल का जो हम बोलते हैं सेक्स रेशियो कैसा है? 1000 ज़्यादा है या 1084 ज़्यादा है? 1084 ज़्यादा है. 84 ज़्यादा है, मीन्स महिलाएं ज़्यादा है। ओके, द थर्ड रैंक इज दैट ऑफ तमिलनाडु 966 पर 1000 मेल्स, वो ज़्यादा है। द लोएस्ट जेंडर रेट इज दैट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव। शायद आपने नाम सुना होगा, दमन एंड दीव। सुना है कि नहीं सुना है? Yes, ma'am. सुना है. यस, दमन एंड दीव। Yes, ma'am. दमन एंड दीव फॉलोड बाय द दादरा एंड नगर हवेली। ये नगर हवेली है, दादरा, ये हम पढ़ चुके हैं। तो वहाँ पे जो महिलाओं का जो सेक्स रेशियो है वो कितना है? 774। चंडीगढ़ में 860, दिल्ली में 868, एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड 879, एंड हरियाणा 879। मीन्स हरियाणा और निकोबार एंड अंडमान निकोबार आइलैंड में सबसे कम है। सॉरी, दिल्ली में सबसे कम है, या चंडीगढ़ में सबसे कम है। कहाँ पे ज़्यादा कम दिखाई देता है? पर 1000 मिल कहाँ पे कम दिखाई देता है? कहाँ पे कम दिखाई देता है? दादरा एंड नगर हवेली. दादरा एंड नगर हवेली फॉलोड बाय दमन एंड दीव। तो यहाँ पे महिलाओं की जो संख्या होती है वो कैसे दिखाई देती है? हमको कम दिखाई देती है। वहाँ पे लड़कियों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता। आगे का देखते हैं, चाइल्ड सेक्स रेशियो। लो चाइल्ड सेक्स रेशियो इज बेटर इंडिकेटर टू शो दैट फीमेल चिल्ड्रन आर प्रिवेंटेड फ्रॉम बीइंग born. The child sex ratio means 0 to 6 years declined from 927 females per 1000 males in 2001 and 914 in 2011। मीन्स 2001 में ये बढ़ा और 2011 में उसका सेक्स रेशियो कैसा दिखाई देता है? कम दिखाई देता है। चाइल्ड सेक्स रेशियो मीन्स 0 to 6 ईयर की जब हम बात करते हैं तो कभी कभी तो लड़की ही क्यों पैदा करनी, ऐसा क्वेश्चन मार्क दिया जाता है। लड़कियों को क्यों पैदा किया जाता है? तो लड़कियों को कभी कभी तो ऐसा बोला भी जाता है स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए, कि वो तो नरक का द्वार है। तो वो नरक का द्वार है, तो फिर स्वर्ग का द्वार कौन सा है? स्वर्ग का द्वार कौन सा है? अगर आप सोचिए महिलाएं नहीं होती तो फिर जनरेशन टू जनरेशन बनती क्या? अगर महिलाएं No, नहीं ma'am. होती नहीं. तो जनरेशन टू जनरेशन बनती क्या? No, नहीं बन ma'am. सकती। दोनों ही जरूरी है, तो समाज के लिए दोनों ही जरूरी, लेकिन कुछ समाज में महिलाओं का बिल्कुल भी स्थान नहीं है। इतनी घटिया सोच होती है कि कुछ हम उनके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकते। आप रोज जो किस्से देखते हैं न्यूज़ में, हाँ, जो पीड़ित महिला होती है उसको आत्महत्या करने पे मजबूर कर देते हैं, उसको मारपीट करते हैं, उसको डिवोर्स देते हैं। अगर किसी लड़की ने किसी लड़के के प्रपोजल को ठुकरा दिया तो उसके मुंह पे एसिड फेंका जाता है। ऐसा बहुत सारी घटनाएं घटती है, शायद आपने देखा भी होगा। और मूवी थ्रू तो हमको ये ज़्यादा जल्दी से समझ में आता है। मूवी तो एक मिरर है, एक जरिया है, लेकिन जब हम रियलिटी देखते हैं तो रियलिटी कुछ और ही होता है। रियलिटी में कुछ और ही होता है। डू यू अंडरस्टैंड? Yes, डू ma'am. अंडरस्टैंड? ओके, अभी आपको ये क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? Child चार्ट। sex ratio top 5 state. ओके, चाइल्ड सेक्स रेशियो। तो यहाँ पे चार्ट दिखाया गया है, दो चार्ट है। तो एक चार्ट है टॉप 5 स्टेट्स में जहाँ पे महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, वो 5 स्टेट कौन से हैं, और जहाँ पे महिलाओं की संख्या कम है वो 5 स्टेट कौन से हैं। ओके, याद रखिए आप, वो एक बता देती हूँ
कि जो ये आपको पॉइंट दिया जाता है ना, ये आंकड़े दिए जाते हैं कि फॉर एग्जांपल कौन से यहाँ पे कौन सा कम है या ज़्यादा है, तो वो फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। तो ये आप याद रखिएगा। मैं दूसरी या तीसरी चौथी बार बता रही हूँ कि ये आपको आपके बुक के पीछे नहीं मिलने वाला। आपके बुक के पीछे जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें से नहीं मिलेगा, आपको अपना नोट्स में से ही मिलेगा कि फिल इन द ब्लैंक्स में ऐसा कौन सा था कि यहाँ पे महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, कितना है, वो पॉइंट सिर्फ आपको याद रखना है। ओके, तो टॉप 5 स्टेट जहाँ पे महिलाओं की संख्या ज़्यादा है वो कौन सा है? सबसे पहले आता है अरुणाचल प्रदेश। वहाँ पे महिलाओं की संख्या है 972, मिजोरम 970, मेघालय 970, छत्तीसगढ़ 969 और पौंडीचेरी है, वहाँ पे है 969। ये पौंडीचेरी लिखना रह गया है, लेकिन पौंडीचेरी आता है। तो कौन से 5 स्टेट हुए बताइए मुझे जरा, टॉप 5 में कौन से 5 स्टेट आते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो के बारे में? अरुणाचल प्रदेश, यस, प्रदेश, मिजोरम, यस, मेघालय, मेघालय, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ और मैंने छत्तीसगढ़, और पौंडीचेरी। पौंडीचेरी। ओके, तो पौंडीचेरी, तो ये 5 स्टेट है। ओके, अभी नेक्स्ट आगे का पॉइंट देखते हैं। ये लो बॉटम 5 स्टेट मीन्स यहाँ पे महिलाओं की संख्या कैसी है? कम दिखाई देती है, या लड़कियों की संख्या कम दिखाई। चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात कर रहे हैं ना, 0 to 6 ईयर के बारे में बात करें तो ये स्टेट के नाम भी अभी दिए गए। सबसे पहले आता है हरियाणा। तो हरियाणा में कितना है? 834। दूसरा आता है पंजाब में कितना है? 846। जम्मू में कितना है? जम्मू एंड कश्मीर में 862। अंडमान एंड निकोबार में कितना है? 868। और दिल्ली में कितना है? 871। तो इस प्रकार का कुछ हमको सिनारियो दिखाई देता है। ये पॉइंट समझ में आए? तो इजी वाला है, आपको शायद जल्दी से समझ में आया होगा। यस और नो? यस मैम। ओके, आपको एक दूसरा एग्जांपल देना चाहती हूँ कि कुछ साल पहले दिल्ली का ये बात है, ये दिस इज द रियलिटी। दिल्ली में ये हुआ था, एक घटना बन चुकी है। शायद आपने क्राइम पेट्रोल या हम जो बोलते हैं सावधान इंडिया, इसमें से आपने देखा होगा। तो उसमें बताया था कि एक लड़की थी जो यंग थी, उसका बॉयफ्रेंड था, वो दोनों ही बस में जा रहे थे। तो रात का टाइम था और दिल्ली में तो काफ़ी कुछ समय में कि लड़कियों पे बैन लग जाता है कि रात को ज़्यादातर बाहर नहीं निकल सकते। आई थिंक ये एक था। तो वो जब अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही थी, बस में बैठी हुई थी, तो उसको जो 5-6 गुंडे आए उस बस में चढ़े, उसके बॉयफ्रेंड के सामने उसका रेप किया, उसको मारा पीटा, उसके बॉयफ्रेंड के पैर काट दिए। ऐसा केस हुआ था जिसकी वजह से मिस जो गुंडे थे या जो जिन्होंने रेप किया उनको पनिशमेंट भी मिली। समझ में आया? तो इस प्रकार का सिनारियो, लड़कियां सेफ है कि नहीं, तो इसकी वजह से खुद लड़कियों को भी उतना अवेयर होना चाहिए और लड़कों को भी, क्योंकि हर एक लड़की में उनके फॉर एग्जांपल लड़कियां जो होती है वो लड़कियां जो होती हैं हमारे हिंदू शास्त्र के अनुसार उनको लक्ष्मी के रूप में जाना जाता है, उनको लक्ष्मी के रूप में माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है। एम आई राइट? यस मैम। ओके, वहाँ पे लड़कियों को लक्ष्मी की तरह पूजा जाता है कि हाँ ये हमारे घर की लक्ष्मी है, उसको पूजा जाता है। तो फिर वही लड़की किसी के घर की बहू बन जाती है, तो फिर जो लक्ष्मी होती है आपके घर का पूरा काम करती है, आपको संभालती है, आपको खाना देती है, सब कुछ संभालती है। फिर भी उसको कभी कभी टॉर्चर किया जाता है। तो वो फॉर एग्जाम्पल वो दुखी हो गई तो पूरे घर का माहौल कैसा होगा? वो दुखी होगी तो घर का माहौल कैसा होगा? सह होगा ना, दुखी होगा ना। तब घर वाले कैसे होंगे कि फॉर एग्जाम्पल वो खुश रहती है तो आपको सबको खुश रख सकती है। एम आई राइट? सबको खुश रख सकते यस हैं ना। मैम। ओके, पर वही ठीक नहीं होगी तो आपको कैसे संभालेगी? अगर वही ठीक नहीं होगी तो आपको कैसे संभालेगी? तो इस प्रकार का कुछ हमको सिनारियो दिखाई देता है। ओके,
कि फॉर एग्जाम्पल ऐसा बताया जाए कि वो अगर महिला चाहे तो घर को जन्नत बना दे, या उसको वो चाहे तो घर को स्मशान बना दे, तो आपको किस तरह से उसको बनाना है? आपको उसको जन्नत में बनाना है या आपको उसको स्मशान में बनाना है? तो ये हम पे डिपेंड करता है। जिस तरह से आप व्यवहार करते हो उसके साथ, उसके हिसाब से वो रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन वाला जो हम बोलते हैं ना, एक्शन रिएक्शन, वो कुछ वाला सीन दिखाई देता है। एम आई राइट? एक्शन रिएक्शन वाला सीन दिखाई देता है। एम आई राइट? यस यस और मैम। नो? हाँ, ये पॉइंट समझ में आए? Yes, ma'am. यस ओके मैम, आ गए समझ में। ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं। आगे का पॉइंट देखते हैं। देखिए, रीजन फॉर डिक्लाइनिंग इन सेक्स रेशियो। तो कौन से रीजन है कि अभी यहाँ सेक्स रेशियो कम हो रहा है लड़कियों का? तो रीजन कौन से हैं? देन फर्स्ट पॉइंट इज प्रीनेटल सेक्स डिटरमाइंड एंड इलेक्टिव अबॉर्शन. प्रीनेटल, प्री मीन्स पूर्वी, प्री म्हणजे आपण म्हणतो ना त्याला पूर्वीपासून आपल्याला माहित असलेला. प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स मीन्स जहाँ पे हम बोलते हैं ना सोनोग्राफी, कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, सोनोग्राफी किया जाता है, ये टेक्निक का इस्तेमाल नहीं, उसका क्या बोलता है, डिसएडवांटेज लिया जाता है. तो इंडियंस आर deliberately ensuring that girls are not born. The Indian people thought that, some Indian people thought that the girl should not be born, the girl will not be born. That यहाँ पे देखिए बड़े अक्षरों में लिखा है कैपिटल में, अल्ट्रासाउंड एंड amniocentesis tests are misused to find the sex of unborn baby. मीन्स जो अभी तक इस दुनिया में आया ही नहीं, उसको पहले ही मारने की कोशिश की जाती है. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जब तक वो यस दुनिया मैम। में आया ही नहीं, उसको पहले से ही मारने की कोशिश की जाती है. किस तरह से मारने की? कि फॉर एग्जाम्पल अभी अल्ट्रासाउंड और ओमनी सॉरी एमनियोसेंटेसिस जो टेस्ट बनवाए जाते हैं या करवाए जाते हैं, तो उसमें जो हम बोलते हैं फीटस होता है, फीटस मीन्स जो गर्भ होता है, कि अगर लड़का है लड़की है कि कैसा है, जैसे आपको मैंने पहले बताया या नहीं पता कि, लेकिन जो 3 महीने का जो हम बोलते हैं, जो हम बोलते जो गर्भ होता है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो ज़्यादा फलित हुआ नहीं होता है, ज़्यादा डेवलप हुआ नहीं होता है. 3 महीने के बाद पता चलता है कि हाँ ये लड़का है लड़की है, उसको हम बोलते हैं ऑर्गन्स आते हैं. ओके, तो उसके बाद पता चलता है कि अभी 3 महीने तक ही अबॉर्शन करवा सकते हैं. तो लड़की होती है तो तुरंत पता चलने के बाद कुछ लोग अबॉर्शन करवा देते हैं, और अबॉर्शन करवाने के बाद भी जितना अबॉर्शन करवाते हैं उतना जो हम बोलते हैं महिलाएं होती है उनकी जो हम बोलते हैं हेल्थ पे या तंदुरुस्ती पे उनकी इफेक्ट दिखाई देती हैं. तो कभी कभी आपको समझ में ऐसे भी केसेस दिखाई देते होंगे कि बहुत सारी महिलाएं जिसने अबॉर्शन करवाया है, लेकिन अभी जब उनको बच्चा चाहिए तो उनको बच्चा नहीं हो रहा है. एम आई राइट? ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है कि नहीं होता है? यस और नो? Yes, यस. ma'am. तो बच्चे तो भगवान की यस देन होते हैं, बच्चे तो Ma'am. भगवान की देन होते हैं, तो उसको स्वीकार करना जो है, उसको स्वीकार करना ये हमारी प्रकृति में होना चाहिए. लेकिन हम उसको क्या करते हैं, इसको इनकार कर देते हैं. तो फिर भगवान भी उनका किस तरह से पनिशमेंट देते हैं, अगर जब आपको बच्चा चाहिए तब आपको बच्चा ही नहीं हो सकता, क्योंकि आपने बहुत सारे जो बच्चे थे जो पहले दुनिया में आने से पहले आपने उनको मार दिए. सो दिस प्रैक्टिस इज अ कॉमन इन पंजाब, दिल्ली, हरियाणा एंड राजस्थान. तो मैंने जो बोला कि जो स्टेट है कि जहाँ पे लड़कियों की संख्या कम दिखाई देती है, तो सबसे पहले आता है हरियाणा. हाँ, हरियाणा, बिहार हम जो बोलते हैं हरियाणा. पंजाब आता है, पंजाब भी आता है. लड़कियों की संख्या वहाँ पे कम है. दिल्ली है, हरियाणा है और राजस्थान है. तो यहाँ पे लड़कियों हमको कम दिखाई देती है. देन नेक्स्ट पॉइंट इज इनफेंटिसाइड. इनफेंटिसाइड मीन्स, सूरज आप क्या कर रहे हैं, क्यों क्यों खराब कर रहे हैं पीपीटी मेरा, क्लीन कीजिए. यहाँ पे आपको पढ़ना नहीं है, घर पे बैठो आप. सूरज प्लीज क्लीन दिस स्क्रिबल. आपका ये काम करने के लिए हमको बनाया गया है यहाँ पे. हाँ, आप स्क्रिबल करते रहो.
और फिर हम ये इरेज करते रहे। आपको समझ में नहीं आ रहा है? अगर किसी ने किया तो मैं उसको यहाँ से रिमूव कर दूंगी। क्लास में बैठना नहीं है आपको। किस तरह से यहाँ पे आप ऑनलाइन घर पे बैठे हो, तो उसका मतलब क्या हो रहा है कि जैसे आप क्लास में बैठे हो उसी तरह आप डिसिप्लिन में आप यहाँ पे बैठिए। Infanticide. In some places, the girls are even killed soon after the birth. Like Gumara village in Madhya Pradesh had this practice in the past. तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि मैंने जैसे ये जो अगला पॉइंट है प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेंट टेस्ट और इलेक्टिव अबॉर्शन, तो ये पॉइंट यहाँ से रिलेटेड है कि एक पॉइंट के बाद दूसरा पॉइंट आता है कि यहाँ पे देखिए कि मध्य प्रदेश में जो घुमारा गांव है वहाँ पे लड़कियों को, अगर लड़की होती थी तो उसको जन्म से पहले उसको मारा जाता था। शायद आपको ये अपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि पास में लड़कियों को किस तरह से मारा जाता। अगर लड़की पैदा हुई है तो लड़कियों को जन्म के साथ ही, उसका पैदा होने के बाद ही, अगर दूध का जो हम बोलते हैं पतीला, उस गरम गरम दूध में उसको डाला जाता था, क्योंकि पूरा का पूरा जो हम बोलते हैं ना बच्चा ही डिस्ट्रॉय हो जाए। आपको शायद ये पता होगा। आपने ऐसा कुछ सुना है? आपने कुछ ऐसा सुना है? नो मैम, नहीं। नहीं, ये पास में होता था। पास में होता था कि जब लड़कियां पैदा होती थी, जब हम बोलते हैं ना राजा राम मोहन राय, वो जो पीरियड था ना कुछ सेंचुरी पहले, कि जब लड़कियां पैदा होती थी तो उनको गरम गरम दूध में उनको डाला जाता था, उबले हुए दूध में उनको डाला जाता था कि पूरा का पूरा बच्चा। कैसी सोच होगी, देखिए किस तरह से लोग सोचते थे, किस तरह का सोचते थे, तो कैसा सोच होगा। तो लड़कियों को दूध में डालने के बाद उनका किस तरह से हाल होता होगा, क्या होता होगा। अभी तो जो बच्चा जिसने कुछ देखा ही नहीं, जो माँ के घर से सिर्फ अभी निकला है, उसको पूरी दुनिया दिखानी है, तो वहाँ पे उसको पहले ही मार दिया जाता है। ओके, नाउ ड्यू टू बीइंग पनिश्ड द इंसिडेंस ऑफ सच केसेस इज डिक्लाइन। कि अभी तो थोड़ा सा रिसेंट टाइम में कि जो कायदे कानून बनाए गए उसकी दर के हिसाब से भी तो ये जो प्रैक्टिस है वो कैसी हो चुकी है, कम हो चुकी है, कम होती दिखाई देती है। समझ में आ रहा है? डू अंडरस्टैंड? कम होती हुई दिखाई देती है। डू अंडरस्टैंड? यस और नो? यस मैम। हाँ। Yes, ma'am. Then next is Yes. malnutrition of the girl child. Malnutrition means कुपोषित। Malnutrition, nutrition means क्या? Related to which point? Nutrition is related to which point? Nutrition is related to which point? Simple answer. Your health is related to which point? आपकी तंदुरुस्ती कहाँ से जुड़ी हुई है? कौन से पॉइंट से जुड़ा हुआ है आपका तंदुरुस्ती? हेलो, आपका तंदुरुस्ती कौन से पॉइंट से जुड़ा हुआ है, बताइए मुझे। शरीर में तैयार होने वाली न्यूट्रिएंट्स से। आप जो खाना खाते हैं कि नहीं, ये सिंपल वाला आंसर है। आप जो खाना खाते हैं ना, फूड खाते हैं ना आप जो खाना खाते हैं उसकी आपकी तंदुरुस्ती वहाँ पे डिसाइड होती है कि आप कितने तंदुरुस्त हो। सो माल न्यूट्रिशन इज रिलेटेड टू द फूड। द माल न्यूट्रिशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड। गुड फूड इज गिवन टू द मेल चाइल्ड फर्स्ट, द फीमेल गेट्स व्हाट इज लेफ्ट इफ एनी। तो ज़्यादातर लड़कों को अच्छा खाना दिया जाता है और जो कुछ भी बचा हुआ होता है वो लड़कियों को दिया जाता है। दिस इज पर्टिकुलरली सीन इन द पुअर फैमिली। जो हम बोलते हैं गरीब फैमिली होती है, गरीब घर होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा हमको दिखा देते हैं। अगर बहुत सारे